Students, this one is the group discussion class. So today we will discuss about this episode. Group discussion, it means आप लोगों को आंसर देना है और मैं भी उसमें अब इंक्लूड हूँ. So here is written also, discuss the following in groups. So that is group discussion. The episode has been narrated in a light vein. What social mores does the author seem to ridicule? Tell me. The episode has been narrated in a light vein. It means, what is the reason? The author is saying here, the episode has been narrated in a light vein. What is the meaning of light vein? Do you know? Lakshmi, do you know the meaning of light vein? Okay. एपिसोड जो है उसका जो नरेशन है, इट मींस उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो लाइट वेन मतलब स्पेशली फोकस ऑन वन पॉइंट. वैसे वेन का मतलब होता है, क्या होता है मीनिंग, जो हमारे अंदर ये नसें होती है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग नहीं है. इसका मीनिंग यहाँ पर है कि कौन से पार्ट पर फोकस किया जा रहा है. ओके, तो स्पेशली किस पर फोकस किया गया है यहाँ पर इस एपिसोड में? व्हाट सोशल मोर्स डज द ऑथर सीम टू रेडिकल, यानी जो सोशल हमारे अंदर जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, सोशल मोर्स यूज किया है उसके लिए. तो द ऑथर सीम टू रेडिकल, रेडिकल मतलब मजाक उड़ाना चाहता है ऑथर. ओके, मतलब कि क्या कर रहा है, कमेंट्स कर रहा है सोसाइटी की नेगेटिविटी पे. तो व्हाट इज द नेगेटिविटी ऑफ द सोसाइटी, बताइए क्या नेगेटिविटी है सोसाइटी की? मैम, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, अगर चैप्टर के अकॉर्डिंग देखे जाए तो जो आजम खान थे वो अपने जो फैमिली पर थे वो प्राउड करते थे, अपने एंसेस्टर पर प्राउड करते थे, क्योंकि वो अपने बड़े खानदान से रिलेट करते थे. उनकी कंडीशन बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी वो उनको घमंड था अपनी चीज पर, और इसकी वजह से उनके पास जो भी, वैसे तो वो बहुत ज्यादा गरीब थे, लेकिन उनके पास जो भी कुछ बचा हुआ था वो भी उन्होंने अपने घमंड की वजह से सब कुछ दे दिया. यस, वेरी गुड आंसर. So, can you say all the things in English? Are you comfortable to speak in English? Can you make sentences in English? आप इंग्लिश में ये सेंटेंसेस बना सकती हैं. ट्राई टू मेक सेंटेंसेस इन इंग्लिश. प्रिया, प्रिया, ट्राई टू स्पीक ऑल्सो. हेलो, आर यू लिसनिंग? यस प्रिया, आर यू लिसनिंग? हाँ लक्ष्मी बोलिए. मैम, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर we seen that Azam Khan was a very proud person. Yes. He always proud on his ancestors and their family. Yes. His condition was not good At all. Yes. at all, but he believed in lost show for off. all things. He believed in show off. किस पर बिलीव करते थे वो? शो ऑफ पर. So that is why he has lost all the property of himself. Okay. So student, write the answer of this question. The episode has been narrated in a light vein. Overshow social mores is used to ridicule because Azam Khan ever want to be over smart, ever want to be over smart,
always think about others, just as the mistakes of Ramanand was upside. He shouldn't use any comments regarding for it. What he has done again and again, that was the fault of him, as he had lost all the property of himself by misusing of his proud. It means we shouldn't say anything to others regarding for their condition. We should always satisfied with what we have, and we should work according to our income. In short, we can say the author wants to comment on the behavior of Azam Khan. Got it? Hello? Have you written, all of you? Oh ma'am. क्यों नहीं लिखा है आप लोगों ने? संदीपन तक रह गया मैम, आगे तो बोलते गए मैम लगातार। ओके, तो एक्चुअली क्या है, सर फ्लो बन रहा था, तो वैसे मैं धीरे धीरे ही बोलती हूँ. लक्ष्मी, हैव यू रिटन ऑल्सो? मैम लास्ट में नहीं लिख पाया और ऊपर वाला तो लिख लिया पूरा. ओके, प्रिया, हैव यू रिटन? Priya, are you in the class? Hello? You are not giving answer, Sunidhi? Yes, ma'am. Have you written? अभी लास्ट का रह गया है थोड़ा सा. Oh God. Who has written completely? Jyoti? Have you written completely? No ma'am, in short we can say कि आगे नहीं लिखा. अच्छा. Okay. होने तो you haven't written also. चलो कोई बात नहीं, आप मुझे एक बार पढ़ के सुनाइए. लक्ष्मी? Okay ma'am. हाँ, जो रह गया मैं दे दूँ. हाँ. The episode has been narrated in a lighter vein. Our social moral is used to ridicule because Azam Khan ever want to be over smart. He always think about others, just as the mistake of Ramanand was upside. He shouldn't use any comments regarding for it, but he had done again and again. That was the fault of him, that he lost the property himself by misusing of his proud. It means we shouldn't say anyone to other regarding to this. We always satisfy. We should always satisfied with what we have. In short, we can say author wants
wants to ridicule at the social mores. At the social mores. Okay? Have you written this? Yes, ma'am. Okay. Now, second question, we will discuss this. What do you think are the reasons for the references made to the English people and the British monarchy? Okay. अभी इसके अंदर हमने चैप्टर के अंदर तो नहीं पढ़ा ये सब, बट वी कैन डिस्कस अबाउट दिस. हम डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि हमने और दूसरे सब्जेक्ट्स में या दूसरे चैप्टर्स में ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं. तो इंग्लिश पीपल and the British monarchy, what do you think are the reasons for the reference made to the English people and the British monarchy? ये भी इंट्रोड्यूस नहीं, इस चैप्टर में स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया है. हाँ, तो स्टार्टिंग में ये इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने इंग्लिश पीपल का और ब्रिटिश मोनार्की का. तो व्हाट वाज द रेफरेंस इज गिवन हियर इन दिस चैप्टर? पढ़ा किसी ने ध्यान से? कौन सा रेफरेंस दिया गया था इस चैप्टर में? पता है आपको कौन सा रेफरेंस दिया गया था इंग्लिश पीपल के लिए? देखिए हम वापस से निकालेंगे, इससे तो अच्छा है. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द बुक. ओके, इन द स्टार्टिंग is written here, outsider may think it stupid to lay down or rather to raise lines of demarcation of this kind, but we are notorious in the whole world for sticking to our queer old conventions, pride and prejudice, even as the Chinese or the Americans or for the matter. देखिए स्टार्टिंग में चैप्टर के बताया गया था कि मस्तिष्क के बारे में, यानी मूंछों के बारे में, जो इस तरह की रॉयल्टी और अपने आप को ओवर स्मार्ट शो करना, टाइगर मस्टेक और गोट मस्टेक के बारे में बताना, ये सब तो केवल हायर क्लास और लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास सोसाइटी के लिए, सारे लोगों के लिए मूंछों का फिक्स कर देना, ये सब इंडिया में ज़्यादा चलता था, चाइना में भी था, अमेरिका में भी था. लेकिन ब्रिटिशर्स डजंट बिलीव इन इट. उस टाइम पे भी और अभी भी ब्रिटिशर्स इस बात पर बिलीव नहीं करते थे. ओके, अब इसके बाद उन्होंने लिखा है द इंग्लिश एंड द एनिरेट. सम पीपल में थिंक इट इजियर एंड मोर कन्वीनियंट टू वेयर परमानेंट बाउंड्री लाइन्स. They always use boundary line only. वो कई बार केवल बाउंड्री लाइंस रखते हैं अपनी मस्टर्स की. ठीक है, उसके अलावा उन्होंने लिखा है they ever believe. हम इसमें से नहीं देख रहे हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप क्या लिखेंगे इस आंसर में. इस आंसर में ये लिखा जाएगा कि वो लोग अपने कोट पर, अपने फ्रिल्स पर, शर्ट की फ्रिल्स पर, फ्रिल्स यू नो, एक उस टाइम पर एक तरह की फ्रिल्स झालर लगी हुई शर्ट हुआ करती थी, तो उसके बारे में उन्होंने, फ्रिल्स के बारे में वो ज़्यादा ध्यान देते थे, अपने कोट्स पर ध्यान देते थे, शूज पर ध्यान देते थे. तो जितने भी ऐसे मटेरियल्स हैं जैसे ड्रेसेस हैं, इन सब पर ज़्यादा ध्यान देते थे वो, कंपैरेटिव इसके कि वो उनकी मस्टर्स कैसी हो. ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स जो हैं उनके बारे में यही बताया गया है स्टोरी के अंदर कि वो अपने फ्रॉक कोट्स, ट्राउजर एंड टॉप हैट्स, इन पर ध्यान देते थे. ओके, विच कॉन्स्टेंटली नीड टू बी लॉन्ड्रेड एंड ड्राई क्लीन, जिसमें कि लॉन्ड्री में जाकर ड्राई क्लीन कराने की जरूरत पड़ती थी, and the maintenance of which is already leading to the bankruptcy of European ruling classes. देखिए ये जो महंगा था, क्या उनको नए नए कोट्स पहनना, नए नए तरीके के कोट्स पहनना, ट्राउजर्स पहनना,
और उनकी मेंटेनेंस करना, तो ये सब बहुत टिपिकल था, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स वर रिच, आपको पता है ब्रिटिशर्स जो है वो अमीर थे, और मोनार्की की तो बात ही मत करिए, क्योंकि वो लोग, उनका जो मोनार्किज्म था जो वो बहुत ही अमीर थे। आपको पता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो उन्होंने सभी के ऊपर रूल ओवर किया कई वर्षों तक, कई इयर्स तक, तो वो आपको पता ही है कि वो बहुत रिच हुआ करते थे। तो दैट्स वाई इंग्लिश पीपल जो है वो किस पर ध्यान नहीं देते हैं, मस्टर्स पर ध्यान नहीं देते, केवल बाउंड्री मस्टर्स रखते हैं वो ऑलमोस्ट उनकी ड्रेसेस पे और उनके शूज पर और उनकी और चीजों पर, मीन्स लुकिंग पर, वो और चीजों पर ध्यान देते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ मस्टर्स। इस तरीके की बातें तो केवल इंडिया में होती हैं, ऐसी कंट्रीज में होती हैं जो यूजलेस चीजों पर, टॉपिक पर बात करना पसंद करते हैं। तो मस्टर्स वर नॉट मैटर देयर, ओके, फॉर द डिस्कशन। उनके यहाँ मस्टिक का कोई मतलब नहीं था, कोई डिस्कशन नहीं था मस्टिक के बारे में। क्लियर टू यू? आर यू लिसनिंग ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके, ईशा, हैव यू लिसन दिस? ईशा, मैम, हाँ जी, मैम प्रिया का वो कंप्यूटर से ले रही है क्योंकि उसमें आवाज नहीं आ रही, इसलिए वो बोल नहीं पा रही। ओके, कोई बात नहीं। ईशा, आई एम आस्किंग यू, आर यू टेकिंग फ्रॉम मोबाइल? Yes, ma'am. So this chapter you haven't studied, है ना? तो दैट्स वाई आप है ना वहां से पढ़ सकते हैं यूट्यूब से ये चैप्टर। Yes. और इसका क्वेश्चन आंसर मैं लिखवा रही हूँ, जो कि ऑलरेडी लक्ष्मी यू हैव रिटन। Yes, ma'am. ओके, देन सेंड मी पीडीएफ, और वो मैं आपके ग्रुप पर भेज दूंगी। ओके, Okay, ma'am. तो ये वाला आंसर या इसको रहने दीजिए, फिर इसका कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का। नाउ वी विल सी दिस, व्हाट डू यू थिंक इज द मैसेज दैट द ऑथर सीम्स टू कन्वे थ्रू द स्टोरी? क्या सोचते हो आप, कौन सा मैसेज देना चाहता है ऑथर? क्या मैसेज देना चाहता है इस स्टोरी से? यस सुनिधि बताइए। स्टोरी से हाँ चलिए, कोई बात नहीं, लक्ष्मी आप बताओ, हाँ क्या मैसेज देना चाहता है? मैम इस स्टोरी से ऑथर ये मैसेज देना चाहता है कि थ्रू रामानंद, थ्रू आजम खान के थ्रू वो ये मैसेज देना चाहता है कि जो लोग हैं अब इस सोसाइटी के अंदर, वो अपने जो अपना कल्चर चलता हुआ आया है, जो अपने ओल्ड वैल्यूज है, उनको अभी तक उनको फॉलो कर रहा है, और इस वजह से वो जो सोसाइटी है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। उसके अंदर जो सोसाइटी के अंदर जो ग्रोथ होनी चाहिए, वो उनको जो डेवलपमेंट होना चाहिए, हाँ वो नहीं हो पा रही है, अपने यस मैम वो नहीं हो पा रही है। यस, तो लिखिए, मैं आपको लिखवाती हूँ, आंसर लिखिए, ऑल ऑफ यू राइट। ओके, ज्योति, ईशा, आप लोग सभी लोग कॉपीज पे लिखिए। दिस मैसेज आई वांट टू गिव यू फ्रॉम दिस स्टोरी, आई वांट टू गिव यू आंसर। The message of this story, is that we should never believe in overshow. We should do all the work according to ourselves. We should do all the work according to ourselves, because of if you will use proud and over smartness, then you will lose all the things,
which belong to you, which belong to you. So in short we can say we shouldn't think about our ancestors and old traditions. We should work according to our position. We should work according to our position. Have you written? Hello, have you written all of you? Lakshmi, have you Yes. written this? चलिए बोलिए, बोल के सुनाइए. Ma'am, the message of this story is that we should never believe in overshow. We should do all the work according to ourselves because of if you will use proud and over smartness, then you will use all the things which belongs to you. So in short, we can say we should not think about the ancestors and their thinking. We should work about the position. नहीं, we should work according to our position. ठीक है? Have you written all of you? Okay. Sunidhi, Yes, ma'am. all of you written? Isha, have you written also? Yes, ma'am. Okay, Jyoti, have you written? Yes, ma'am. Subho, have you written or not? बेटा ये वाला लिख लिया आपने? जवाब दीजिए, लिख लिया क्या ये वाला? Okay. Okay, now it's already 11:55. So I want to close the class. Tomorrow we will read poem. Okay? हम poem पढ़ेंगे कल. Okay, ma'am. Thank you, Okay. ma'am. Thank you. Have a nice day, all of you. Thank you.